Good morning students, welcome once again in Club International Online Classes. In the previous video lecture we have done up to ray diagrams with the help of convex lens, and in the previous video I have told you that you will form RAS 3 ray diagrams which I have given to you, and 3 ray diagrams I already have explained to you. I hope that you have made them, and if you have any problem then send to me. Today we are going to start ray diagrams with the help of convex lens. 3 ray diagrams already we have done, and 3 are rest. If you have done, there is no problem. If you have not done, then see. First ray diagram we already have done. First is object at infinity. Second, we already have done object beyond C. Third also object at C. These three in the previous video lecture I have given you. Today we are going to take fourth position for the object, that is object between C and F. For the formation of ray diagram, we are using the 3 rays, and in the previous video lecture I have told you about these rays, how they will refract. First, object between C and F. Just look at here. This is your lens, converging lens जिसको अपन बोलते हैं. You are taking the position of object between the C and F, right? If you are C and F, if you are taking the C and F, then you can write it as a 2F1 and F1, because in it we write the C as a 2F. क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन आपको पता है, बिकॉज C, डिस्टेंस ऑफ द C डबल रिगार्डिंग टू द फोकल लेंथ. ये वाले डिस्टेंस और ये वाले इक्वल मानते हैं अपन. यहाँ पे F2 देन 2F2. जस्ट टेक फर्स्ट रे parallel to the principal axis. After refraction, what will happen? It will pass through the focus. This ray will pass through the focus, right? Second ray, if you are passing this ray through the O, then it will pass in a straight manner without any refraction. You also may take the another row as a F, which will, after the refraction, which you will get as a parallel ray. देखिए, if you are passing the row
इस रे को अगर आपने O से पास किया है, इफ यू आर पासिंग द रे फ्रॉम द O, then you will get the position for the image beyond the 2f2. Where you will get beyond the 2f2. So write the information about the image. First is position, second is nature, and third is size. Tell the position of the image beyond the 2f2. Nature, both rays are cutting each other in real, so it will be real image. You can see it is also an inverted image. Size, compare the size of the image with the object. It is bigger than object. Bigger than object. Right? I hope आपका भी ऐसा ही बना होगा, अगर बनाया होगा तो। नेक्स्ट लेते हैं पोजीशन फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एट द एफ, फिफ्थ पोजीशन जो है, ऑब्जेक्ट एट द F1. First is parallel, it will pass through the F2. Second, if you are taking from the O, no refraction will occur. देखिए कट तो करेगी ये, बिकॉज you can see that distance between the rays is regularly decreasing, कम होती जा रही है, मतलब कट करेगी, बट कहाँ कट करेगी वी डोंट नो। ठीक है, तो जब F पर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, देन पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट इंफिनिटी। ठीक है, रियल में कट करती हैं, इसलिए बोला जाता है नेचर एज अ रियल, एंड इफ दे आर कटिंग टू ईच अदर देन यू विल सी दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड ऑल्सो। और वैसे भी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। आफ्टर दैट साइज, साइज देखिए कितना बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड। बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड। लास्ट पोजीशन of object for the convex lens. After that we will take the concave diverging lens जिसको अपन बोलते हैं। लास्ट पोजीशन अपन ले रहे हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन दी O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1। देखिए ये O है, ये F, यहाँ पे लेते हैं ऑब्जेक्ट। पैरेलल, फर्स्ट, सेकेंड देखिए
दूर जाती जा रही है एक दूसरे से, मतलब कहीं नहीं कटेगी आगे जाकर। तो अपन क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ा के और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। क्या हो रहा है, यहाँ पे कट हो रही है, ठीक है। पोजीशन क्या लिखेंगे इसके लिए, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेम साइड पे आपको इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा। नेचर कैसी है भाई, वर्चुअल, वर्चुअल मिली है आपको, बिकॉज बोथ रेज आर नॉट कटिंग रियली, एक दूसरे से रियल में कट नहीं कर रही है। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल। और कैसी है, दिख ही रही है, इरेक्ट, सीधी बनी है, एंड साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। These are the rest 3 ray diagrams which I have given to you as a homework in the previous video lecture. I hope कि आपके भी ऐसे ही बने होंगे, नहीं बने तो फिर से ट्राई करिएगा, फिर से प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरह से बन रहा है। Now we are taking the ray diagram formation with the help of the concave lens. डाइवर्जिंग लेंस होता है ये, क्योंकि अपने ऊपर आने वाली जितनी भी रेज होती है उनको आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, F1 to F1, F2 to F2। फर्स्ट पोजीशन जब आप लेंगे इसके लिए ऑब्जेक्ट की सेम ही रहेगी जो कि आपने पीछे वाले लेंस के लिए ली थी। ऑब्जेक्ट लेंगे एट इन्फिनिटी, राइट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज आएंगी, बट ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक दैट इट विल डाइवर्ज द रेज, आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ इसको मिलाना होगा। तो आपकी पोजीशन बनेगी इमेज की एट दी F1। कन्वर्जिंग लेंस में F2 पे थी, इस वाले के अंदर आपको कहाँ मिलती है पोजीशन, F1 पे। नेचर रियल में नहीं कट करी तो कैसी है, वर्चुअल है, और वर्चुअल बनती है तो कैसी है, इरेक्ट है। साइज यू कैन सी दैट इट इज हाईली डिमेंस्ड, मीन्स पॉइंट साइज है। या फिर आप लिख सकते हैं पॉइंट साइज, राइट। जैसे आप मिरर्स के लिए लेते हैं बाकी सारी पोजीशंस को सिर्फ एक सिंगल में, यानी अब आप जितनी भी पोजीशन बच गई 2F बियॉन्ड द 2F1, 2F1, F1 और 2F1 के मिड में, F1 पे और O और F1 पे कहीं पे भी रख लीजिए। इस वाले लेंस के लिए आपको एक ही जैसे फीचर्स वाले इमेजेस मिलने वाले हैं। सो वी आर कंसिडरिंग ऑल द पोजीशन एज अ सिमिलर, मीन्स बिटवीन द इंफिनिटी एंड O। सेकेंड पोजीशन अपन क्या ले रहे हैं, बिटवीन द इंफिनिटी एंड O। तो सेकेंड ले रहे हैं बिटवीन
इन्फिनिटी एंड ओ ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पे भी रखिए सेम रिजल्ट आने वाला है। कहीं पे भी देख लीजिए। देखिए फर्स्ट अपन लेके जा रहे हैं पैरेलल, तो आप देखेंगे कि डाइवर्जन होने के बाद ये F1 से होकर डॉट डॉट करके निकलेगी। इसके बाद सेकेंड जो अपन लेके जाते हैं वो कहाँ से लेके जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, और आफ्टर द डाइवर्जन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन विल पास एज अ स्ट्रेट पाथ एज इट इज, ऐसे कैसे सीधे के सीधे निकल जाती है ऑप्टिकल सेंटर वाली। तो अब देखिए यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा जब भी आप कहीं पे भी रख लेंगे इन्फिनिटी और ओ के बीच, तो आपके ऑब्जेक्ट का इमेज यही बनेगा, किसके बीच, ऑप्टिकल सेंटर और आपके F1 के बीच। तो आप इमेज के लिए पोजीशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे पोजीशन होगी बिटवीन O एंड F1। नेचर वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और लास्ट साइज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑलवेज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही आपको इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये आपके रे डायग्राम्स हो गए विद द हेल्प ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ मिरर, बोथ लेंसेज। मिरर्स के अपन ने पहले कर लिए हैं, दीज आर द लेंसेज, रे डायग्राम्स। नाउ फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। देखिए जिस तरीके से अपन ने मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला निकाला था, तीन जो डिस्टेंस होती है आपकी, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ डिस्टेंस, है ना। तो उन तीनों में जो रिलेशन होता है उसके रिगार्डिंग अपन जब मिरर फॉर्मूला लेते हैं तो वो क्या था आपका, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे ही इन तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं, इन तीनों फीचर्स जो हैं आपके डिस्टेंस के, उनके बीच ही यहाँ पर भी अपन रिलेशन लेंगे, और उसमें और मिरर फॉर्मूले के अंदर, यानी आपके लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपके प्लस माइनस का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जैसे आप मिरर फॉर्मूला आपने लिया था 1/v + 1/u, लेकिन आपका लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। मीन्स inversion of the focal length will be equal to the difference between the inversion of image length minus inversion of object length। तो इन दोनों के डिफरेंस को इसमें किसके इन्वर्जन के इक्वल माना गया है, फोकल लेंथ के इन्वर्जन के इक्वल माना गया है। सेम डिजिट्स वही रहेगी, v = होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v = होगा इमेज डिस्टेंस, u = होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f = होगा फोकल लेंथ। ये डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से लेते हैं अपन डिस्टेंस, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, यानी जितनी भी डिस्टेंस मेज़र की जाती है वैसा ही रूल अप्लाई होगा। जैसे अपन ने कन्वेनिएंट साइन मेथड यूज़ किया था मिरर के लिए, वैसे ही इसके अंदर जो क्रस्टेशियन साइन मेथड यूज़ किया जाता है कन्वेनियंस के लिए, वो भी सिमिलर ही होगा, बट वहाँ पर अपन पोल से कर रहे थे,
जितनी भी डिस्टेंस को अपन मेज़र कर रहे थे वो कहाँ से करते हैं मिरर में, पोल से करते हैं। यहाँ पे जब भी अपन डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। यानी आप वैसे का वैसे फॉलो करेंगे इसको, एक्स डैश मान लेंगे एक्सिस, और इधर वाली जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, ये सारी नेगेटिव होंगी। ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, यानी प्लस वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव में, माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव में, और सारी की सारी वही हैं। बस यहाँ पर जो डिस्टेंस मेजरमेंट है वो पोल से ना होकर कहाँ से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। बस आप ध्यान रखिएगा कि लेंस फॉर्मूले में यहाँ पे सिंबल प्लस की जगह, मिरर फॉर्मूले के प्लस की जगह यहाँ पे क्या लिया जाता है, माइनस ले लिया जाता है। नाउ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में अपन ने कोरिलेशन किया था किसका, हाइट्स का, ऑब्जेक्ट हाइट और आपकी इमेज हाइट का। तो आपको पता ही है मैग्नीफिकेशन इज द एम सिंबलाइजेशन जो होता है मैग्नीफिकेशन का, और होता क्या है ये एच डैश डिवाइडेड बाय एच, जहाँ पे एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, and h is height of object। ठीक है, अगर आप इसको कोरिलेट करते हैं किसके साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ, तो आपको याद होगा मिरर के लिए अपन ने माइनस सिंबल लिया था, इस बार सिंबल नहीं लेंगे माइनस का, v बाई यू, सिंपली v बाय यू आ जाएगा, माइनस सिंबल इसमें नहीं लिया जाता है। डन। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, पावर ऑफ लेंसेस। देखिए अब तक अपन ने जो किया है वो है लेंसेस के टाइप्स और दोनों के रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स में यूज़ होने वाली जो रेज होती है पर्टिकुलर वो, उसके बाद लेंस फॉर्मूला, उसके बाद उसका मैग्नीफिकेशन। जब पावर की अपन बात करते हैं तो पावर जो होता है वो बेसिकली अपन किसके रिगार्डिंग लेते हैं, फोकल लेंथ के। जो फोकल लेंथ होती है उसके इन्वर्जन को अपन पावर के बराबर मानते हैं। यानी पावर ऑफ लेंस का अगर अपन फॉर्मूला देखें पावर ऑफ लेंस का, तो आप देखेंगे पावर को P से इंडिकेट किया जाएगा और ये होगा 1/f, मीन्स इन्वर्जन ऑफ द फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू द पावर। यानी एक तरीके से आप क्या मान सकते हो कि जितनी फोकल लेंथ कम होगी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मतलब कि एक दूसरे के इन्वर्ट हो गए, एक बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है, दूसरा डिक्रीज होगा तो पहले वाला बढ़ना शुरू कर देगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मीन्स बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं P की तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है डायोप्टर। यूनिट कौन सी यूनिट काम में लेते हैं, डायोप्टर। तो डायोप्टर होती क्या है, 1 डायोप्टर जो होता है वो किसके इक्वल माना जाता है आपके, अगर देखिए यहाँ पर अगर आप इसको 1 डायोप्टर के इक्वल माने, सॉरी इसको अगर आप 1 डायोप्टर के इक्वल माने तो आपके पास F भी तो 1 होना चाहिए, तो 1/1 मीटर ये आ जाएगा। तो डिफाइन करिए 1 डायोप्टर को, तो क्या होगा डेफिनेशन, इफ एनी लेंस हैज 1 मीटर फोकल लेंथ देन इट्स पावर विल बी 1 डायोप्टर, या फिर आप कह सकते हो 1 मीटर इनवर्स के बराबर भी 1 डायोप्टर को लिखा जा सकता है। इट विल बी इक्वल टू द 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस में तो जाएगा ही ना इसका,
तो यहाँ पे 1 डायोप्टर जो है वो पावर है और 1 डायोप्टर का जो डेफिनेशन है वो किस तरह से लेंगे आप, 1 मीटर इनवर्स विल बी इक्वल टू द 1 डायोप्टर। देखिए कई बार होता है कि जब अपने आईज़ के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कई बार पास का दिखना बंद हो जाता है, कई बार दूर का दिखना बंद हो जाता है ना। तो जो ये प्रॉब्लम्स आती है जिसको अपन बायोपियास के नाम से जानते हैं, प्रेस बायोपिया, हाइपर मायोपिया, बहुत सारे वो आपके इस बार कट हो चुके हैं। 11th के अंदर से पूरा आई टॉपिक ही कट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए तो वो पहले चेक करता है, बहुत सारे लेंसेज लगा लगा के वो चेक कर रहा होता है और फिर वो बाद में बताता है कि इतनी आपकी आईज इतनी वीक हो गई है। तो वो जो यूनिट देता है ना 1.2 वीक हो गई, 1.25 वीक हो गई या 1 वीक हो गई, है ना, तो वो क्या है, वो पावर, वो आपके लेंस की पावर है। जितना आपने खो दिया है अपने लेंस का पावर और उतनी पावर का अब आपको क्या दिया जाएगा, स्पैक दिया जाएगा, चश्मा दिया जाएगा जिसको आपको रेगुलरली अप्लाई करना है आईज पे। तो बेसिकली वो किसको यूज़ कर रहा है, इस यूनिट को यूज़ कर रहा है आपकी आईज के स्पैक्स बनाने के लिए, आपके आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपको वो देगा। ठीक है, तो वो कौन सी यूनिट है, पावर डायोप्टर यूनिट है, जो वो आपको इंटीमेट करके बताता है कि इतना यूनिट का या इतने पॉइंट का मैं आपको चश्मा दे रहा हूँ। तो देखिए कि कई बार क्या होता है, वो एक से ज़्यादा लेंसेज को आप जब आपको बता रहा होता है कि इसको रीड करके बताइए या वो करके बताइए, आई डोंट नो क्या बोलता है क्योंकि मैंने आई चेकअप नहीं करवाया है, बट अगर किसी ने करवाया हो तो पता होना चाहिए आपको। तो वो क्या करता है, चश्मा लगा होता है उसके अंदर बार बार लेंसेज को बदलता रहता है। ठीक है, तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा या आपको नॉर्मली कंसीडर हो जाएगा कि वो जो बार बार लेंसेज उसमें इनपुट कर रहा है, रख रहा है, उसका रीज़न क्या है। वो चेक करना चाहता है कि कितने पॉइंट्स आपकी आईज वीक हो गई है और कितने पॉइंट्स का उसको प्रोटेक्शन चाहिए, कितने पावर का प्रोटेक्शन चाहिए। तो कई बार एक से ज़्यादा लेंस भी उसको रखने पड़ते हैं, तो फिर वो कैसे कैलकुलेट करता है। तो पावर अगर एक से ज़्यादा लेंसेज की आपको लेनी है तो किस तरीके से ली जाती है, सीरीज़ के अंदर टोटल पावर जब अपन कंसीडर करते हैं तो उसे लिखा जाता है P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी लेंसेज आप लगाते जाएं। जैसे कि आपने देखा होगा बाइनोक्यूलर्स के अंदर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा लेंसेज लगे होते हैं। तो उन लेंसेज का पावर जब एडजस्ट किया जाता है तो किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, फर्स्ट लेंस कितने पावर का है, फिर उसके रिगार्डिंग दूसरा लेंस कितने पावर का लिया जा रहा है, दोनों का एडिशन कर दिया जाता है और आपको ऑल ओवर जितने पावर का बाइनोक्यूलर मिलेगा वो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी कि इतना मैग्नीफाई करके वो आपको किसी चीज़ को दिखा सकता है। तो ये हुआ आपका चैप्टर 10। मेरी तरफ से आपका चैप्टर 10 कंप्लीट है। आई थिंक लास्ट टॉपिक पावर ही है आपका, यस। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगा। तो आज आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। लेंसेज कंप्लीट हो चुके हैं, मिरर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऑल ओवर चैप्टर अपन ने कर लिया है। आई थिंक मेरी तरफ से हो चुका है। बाकी आपकी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं पता है तो प्लीज़ सेंड योर क्वेरीज टू माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, ताकि एक वीडियो अपन ले सकें क्वेरीज से रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।